inverse trigonometric function. Already we have done properties of inverse trigonometric functions and all the basic questions. Link of that videos you will get in the description box. So not wasting too much time, let's get started. Very first question is cos inverse cos 13 pi by 6. Let's have a recap. You remember cos inverse cos theta can be written as theta only when theta belongs to the interval 0 to pi. जब थीटा 0 to pi इंटरवल को बिलोंग करता है only then you can write cos inverse cos theta is equal to theta. लेकिन आप जानते हैं 13 pi by 6 जो वैल्यू है वो 0 to pi नहीं लाई करती है. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन pi, राइट. pi मीन्स ओनली 1 pi. सो आपको सबसे पहले इसको रिड्यूस करना है. cos 13 pi by 6 को रिड्यूस करके जो ये वैल्यू है 13 pi by 6 इसको इस इंटरवल में लेकर आना है. ये हम समझते हैं कैसे करेंगे. तो हमने cos 13 pi by 6 को सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले हमने इस फंक्शन को पिक कर लिया. यू नो दैट दिस कैन बी रिटन एज cos 6 2 12 2 pi plus pi by 6. You know very well cos 2 and pi plus theta is equal to cos theta. मैं लिख भी देती हूँ. cos 2 and pi plus theta is equal to cos theta. So cos 2 pi plus pi by 6 become only cos pi by 6. Now you can see that this pi by 6 belong to this interval. So cos inverse cos 13 pi by 6 now becomes cos inverse cos pi by 6 and this is equal to pi by 6 as pi by 6 belongs to the interval 0 to pi. Now second question, tan inverse tan 7 pi by 6. Let's have a recap that tan inverse tan theta is equal to theta. This is possible only when theta belongs to the open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Right? तो minus pi by 2 to plus pi by 2 means एक बार देखते हैं minus pi by 2 this and plus pi by 2 to this. यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मूव करना है. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं तो हमको माइनस थीटा यूज करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, राइट. यहाँ पर कोई वैल्यू थीटा है तो इधर आकर कितना हो जाएगी वो माइनस थीटा. अब हमारे पास फंक्शन है tan इनवर्स tan 7 pi by 6. फिर आप देखते हैं 7 pi by 6 की वैल्यू तो pi by 2 से बड़ी है तो इस इंटरवल में तो आती नहीं है. तो हम इस फंक्शन को फिर पिक कर लेते हैं. सो tan 7 pi by 6 कैन बी रिटन एज tan pi plus pi by 6. tan pi plus pi by 6 means थर्ड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट अगर हम पहुंच गए तो tan pi plus pi by 6 will become tan only pi by 6 क्योंकि tan pi plus theta is equal to tan theta. अब ये जो pi by 6 है ये तो यही इंटरवल को बिलोंग करता है, नो प्रॉब्लम. सो हमारा फंक्शन कैसे चेंज हुआ. tan इनवर्स tan pi by 6 will become only pi by 6 which belongs to the interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Take question number 3. 2 sin inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 24 by 7. Let's take left hand side. 2 sin inverse 3 by 5. Right. Now consider this sin inverse 3 by 5 as theta. Now sin theta will become 3 by 5. Just make a triangle. Theta अगर आप लेते हैं then 3 by 5 means 3 is perpendicular and 5 is hypotenuse. Find out the base with the help of Pythagoras theorem. Find out tan theta. Tan theta is equal to 3 by 4. If tan theta is equal to 3 by 4 then theta is equal to tan inverse 3 by 4. Right? आपने थीटा की वैल्यू tan inverse 3 by 4 निकाल ली. आप जानते थे थीटा sin inverse 3 by 5 था. कुल मिलाकर थीटा यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्सप्रेस है और यहाँ पर थीटा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स एक्सप्रेस है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी कैन रिप्लेस दिस साइन इनवर्स 3 by 5 बाय
tan inverse 3/4. So our left hand side becomes 2 sin inverse 3/5 to 2 tan inverse 3/4, right? Remember formula 2 tan inverse x can be written as tan inverse 2x upon 1 minus x square. So this will become tan inverse 2 into 3/4 upon 1 minus 3/4 whole square. Now just simplify. 2 2s are 4, 3/2 divided by 1 minus 9 upon 16, 16 minus 9 upon 16, that is 7 upon 16. ये आपका रेसिप्रोकेट हो जाएंगे. 3/2 मल्टीप्लाई 16/7, 2 8s are 16, 8 3s are 24, and here is your answer, tan inverse 24/7. You can do this question by one another method also. For that method you need to redefine the function. वो भी आसान है, मैं आपको एक बार समझाती हूँ. देखिए वो हम किस तरह कर सकते हैं. अगर हम इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते कि हम इस tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, tan 2 sin इनवर्स 3/5. तो अब आपको केवल ये प्रूफ करना होता है. हम आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं. इन दैट केस जैसा अभी आपने किया है कि आपने इसको थीटा सपोज किया था, यहाँ पर साइन दिस इज थीटा, तो आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो जैसे आपने थीटा सपोज किया इट विल बिकम tan 2 थीटा, राइट. मैं यहीं से कंटिन्यू करके आपको समझा रही हूँ. tan 2 थीटा विल बिकम 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब आप tan थीटा की वैल्यू डाल देते. tan थीटा की वैल्यू आपके पास है 3/4, आपने वैल्यू डाल देनी है और आपके पास आंसर 24/7 आ जाएगा. ये एक सिंपल मेथड है, ये एक प्रॉपर मेथड है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. It is obvious there are two different angles are added. आप अच्छी तरह समझते हैं 8/17 एक नंबर है और जब हम इसका इन्वर्स साइन लेते हैं या इन्वर्स कॉस लेते हैं या इन्वर्स tan लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, देन वी गेट अ एंगल. 8/17 से हमें पता लगता है कि ये एक ट्राइंगल डिफरेंट है और 3/5 से हमें पता लगता है ये एक डिफरेंट है ट्राइंगल, राइट. अब सपोज हम करते हैं साइन इनवर्स 8/17 इज थीटा एंड साइन इनवर्स 3/5 इज सपोज अ डिफरेंट एंगल 5. क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमने एक को एंगल को थीटा क्यों सपोज किया और एक को 5 क्यों सपोज किया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है. हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर एक अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म्स में आ रहा है. हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है. पहले इधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं. साइन थीटा बिकम्स 8/17. हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, राइट. सॉल्व करते हैं इसको और लेट हमने कर लिया है ये दोनों फंक्शंस कि साइन इनवर्स 8/17 थीटा एंड साइन इनवर्स 3/5 इज 5. साइन थीटा अगर 8/17 है, आप डायरेक्ट या तो कॉस थीटा निकाल लीजिए या ट्रायंगल बना के कर लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे कर लीजिए. 8/17 होल स्क्वायर और आपके पास आया 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए. अगर आप क्विक 17 स्क्वायर का फार्मूला मतलब नंबर आपको नहीं लर्न है, 17 माइनस 8 एंड 17 प्लस 8, तो आपको 17 माइनस 8 आपको देगा 9 और 17 प्लस 8 देगा आपको 25. नीचे आपके पास 17 स्क्वायर, 9 कैन बी रिटन एज 3, 25 कैन बी रिटन एज 5 और 17 स्क्वायर इज 17 जब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं. और बहुत अच्छी तरह से आपके पास ही 15/17 आ गया. तो कॉस थीटा आपको मिल गया 15/17. अब आपको चाहिए tan थीटा. tan थीटा आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी 8/15. आपके पास tan थीटा मिल गया. आप थीटा को लिख सकते हैं
10 इनवर्स 8/15। एक्चुअली आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है कि इनवर्स साइन को आप इनवर्स 10 में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे वाले भी इनवर्स साइन को आप इनवर्स 10 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको दोनों इनवर्स 10 को ऐड करना आता है। एंड सेकेंड एंगल वॉज 5, साइन इनवर्स 3/5 आपने एज्यूम किया है 5, राइट। अब साइन 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/5। आप tan phi डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इंस्टेड कि आप यहाँ से cos, जैसे आपको साइन थीटा पता था, आपने cos थीटा फाइंड आउट किया, फिर आपने tan थीटा फाइंड आउट किया, आप सीधा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताती हूँ। सपोज आपके पास साइन थीटा a/b है, आप cos थीटा आप tan थीटा डायरेक्ट लिख लीजिए। tan थीटा विल बी इक्वल टू a/√, अगर आपने a/b लिखा है तो ये होगा आपके पास b² माइनस a², क्योंकि जब भी आप साइन थीटा a/b लिखेंगे, आप हमेशा याद रखना a न्यूमिनेटर और b डिनोमिनेटर, a हमेशा b से छोटा होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b, नहीं तो ये पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो इसलिए जब भी आपको साइन थीटा दिया है a/b, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू a/√b² माइनस a²। इसी तरह अगर आपके पास कभी cos थीटा आपको पता है कि मान लो cos थीटा a/b है, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू √, ध्यान से देखिएगा, cos थीटा a/b है, cos थीटा a/b का मतलब हो गया ये बेस है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो आपको अच्छी तरह पता है आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा? b² माइनस a² अपॉन a, राइट। नाउ phi इज इक्वल टू tan phi आपके पास आ गया 3/4। हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ गए। phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आपने इस फंक्शन को थीटा सपोज किया था और इस फंक्शन को आपने phi सपोज किया था, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया था। तो वापस लेफ्ट हैंड साइड में जब हम हैं तो अब थीटा और phi को हमने रीडिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। एक बार फिर समझते हैं, थीटा और phi जब हमने उठाया था क्वेश्चन को, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों फंक्शन साइन इनवर्स की फॉर्म में थे। हमने सिंपल एक काम करना है, जब भी कभी साइन इनवर्स की फॉर्म है या कॉस इनवर्स की फॉर्म है, हमने हमेशा tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये ट्रिक आप हमेशा बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो आपने थीटा प्लस phi को लिख दिया tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब आप याद कीजिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आपको अच्छी तरह याद है। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, प्रोवाइडेड ab लेस देन 1। ये कंडीशन आपने हमेशा अप्लाई करनी है, चेक करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b को tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। 8/15 मल्टीप्लाइड 3/4, 4 2 8 आपके पास आया, एंड 3 5 15, 2/5 विच इज लेस देन 1। सो मूविंग अहेड, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/5 अपॉन 1 minus, this is 4 and this is 4 upon 1 minus 8/15 into 3/4। ठीक, 8 4 32 plus 45 divided by 15 4 60
15 4 ज़ा 60 हम कैंसिल नहीं कर रहे, क्योंकि हम न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसको कैंसिल कर लेंगे। 15 4 ज़ा 60, 60 माइनस 24 विल गिव यू 36 अपॉन 60। देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे के कैंसिल हो गए, एंड योर आंसर tan इनवर्स 77 अपॉन 36 इज हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। हालांकि कुछ बुक्स में cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फार्मूला गिवन है। ऐसे ही उन्होंने साइन इनवर्स का एडिशन भी समझाया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। लेकिन NCERT बुक्स में ये फार्मूला नहीं है। हमें हमेशा जब भी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करना है, उनको हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट करके एक ही फार्मूला यूज करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. So keeping that thing in mind, we will convert this cos inverse to tan inverse and this cos inverse again to tan inverse and apply the formula. तो हमारे पास एक ही एजेंडा है, एक ही मोटिव है कि जब भी हम दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा उनको tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। सपोज cos inverse 4/5 is theta and cos inverse 12/13 as phi। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, हमने ये सपोज किया है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, देखिए ध्यान से, थीटा प्लस पाई ही तो बनी है। अब हमने जब लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो हमने इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4/5 है प्लस cos इनवर्स 12/13 है, यानी थीटा प्लस फाई है, जो हम एज्यूम कर चुके हैं। ठीक, ये आपको समझाने के लिए मैं बार बार इसको इस तरह से लिख के बता रही हूँ। अब cos इनवर्स 4/5 आपके पास थीटा था, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। आप tan थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। tan थीटा कितना होगा आपके पास, अगर आप क्विक नहीं इसको फाइंड आउट कर सकते तो एक बार और ट्रायंगल बना के देख लीजिए। थीटा आपके पास ये 4, ये 5, तो आपके पास ये 3 आ गया, देन दिस इज इक्वल टू 3/4। और जैसा मैंने अभी आपको ट्रिक से भी समझाया था कि tan थीटा अगर हमें निकालना है और हमें cos थीटा गिवन है a/b, तो tan थीटा हमारे पास हमेशा होगा स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस a² डिवाइडेड बाय a, राइट। tan थीटा आपके पास आ गया 3/4। आप चाहें तो इसको लर्न कर लीजिए या आप ट्रायंगल बना के कर लीजिए। tan थीटा 3/4 है, अगेन थीटा फाइंड आउट कर लो। देखो एक बार फिर समझो, थीटा हमारे पास पहले इनवर्स कोसाइन की फॉर्म में था, अब हमने थीटा को इनवर्स टेंजेंट की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से cos इनवर्स 12/13 फाई है, तो फाई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स है। आप समझ गए हैं हमें इसको किसके टर्म्स में निकालना है, tan इनवर्स की टर्म्स में निकालना है कि cos इनवर्स 12/13 अगर हमारे पास फाई है तो cos फाई हमारे पास है 12/13, तो tan फाई हमारे पास हुआ 5/12। आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं आराम से। 13² माइनस 12² आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा और 12 आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा। आपके पास 5 आ गया tan इनवर्स 5/12, राइट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने दो एंगल थे, थीटा और फाई। थीटा cos इनवर्स की टर्म्स में था और फाई हमारा cos इनवर्स की टर्म्स में था। अब हमने थीटा और फाई को किसके टर्म्स में निकाल लिया, tan इनवर्स के टर्म्स में निकाल लिया। सो थीटा प्लस फाई becomes tan inverse 3/4 plus tan inverse 5/12. Apply the formula tan inverse A plus tan inverse B, but before that check that product of 3/4 and 5/12 ये less than 1 है या नहीं है। 5 3 जा 15, 12 4 जा
48 और 3 से आप कैंसिल भी कर सकते थे, विच इज लेस देन 1. सो आगे बढ़ते हैं. tan inverse 3/4 plus 5/12 upon 1 minus 15/48 on solving. tan inverse 36 plus 20 upon 48, 48 minus 15 upon 48, 48 will cancel out, and your answer is tan inverse 56 upon 33. But our answer is in terms of cos inverse 33 upon 65, and tan inverse 56 upon 33 is equal to cos inverse 33 upon 65. How come? आप tan inverse 56 upon 33 के अंदर वापस पाइथागोरस लगा सकते हैं. 56 upon 33 means 56 is perpendicular and 33 is base. Find hypotenuse, and you know that cos is base upon hypotenuse. It will give you 33 upon 65. That's all for today. Next few questions we will do in next video, and till then you just practice all these questions. Till then, bye bye.